السلام علیکم۔ اچھا، اب آج جو ہے ہماری یہ ویڈیو جو ہے وہ بنے گی اس کے اوپر کہ ہم نے کس طرح ڈیٹا بیس میں ویلیو کو انسرٹ کرنا۔ تو اس چیز پہ آج ہم نے کام کرنا ہے۔ تو یعنی کہ سب سے پہلے جو انسرشن کا ہے پوائنٹ وہ کرنا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں ٹولز کیا کیا چاہیے وہ بھی تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ایک تو ویمپ سرور چاہیے۔ ویمپ سرور میں کیا ہے کہ ہمارے پی ایچ پی بھی آ جائے گا اور مائی سیکول بھی آ جائے گا۔ ویمپ سرور وہ میں آپ کو سینڈ بھی کر دوں گا، میں نے بلکہ کر دیا ہوا ہے جن اسٹوڈنٹس کو نہیں بھیجا تو ان کو میں بھیج دوں گا، تو اس کو آپ انسٹال کر لیجئے گا۔ اور کوڈنگ لکھنے کے لیے ویژول اسٹوڈیو کوڈ ہے، اور یہ ایچ ٹی ایم ایل اس کے لیے کوئی انسٹالیشن سی ایس ایس کے لیے نہیں چاہیے ہوتی۔ براؤزر ہوتا ہے، براؤزر میں یہ کمپائل ہوتی ہے، تو براؤزر آلریڈی ہے۔ پی ایچ پی کے کمپائلیشن کے لیے ویمپ سرور۔ ویمپ سرور کیا ہے؟ ایک پیکیج ہے، جیسے آف ورڈ، ایکسل اور پاور پوائنٹ ہمیں ایک ہی آفس سوٹ میں مل جاتے ہیں، اسی طرح ویمپ سرور میں ہمیں پی ایچ پی، مائی سیکول اور اپاچی تینوں چیزیں مل جاتی ہیں۔ جب آپ اس کو انسٹال کر لو گے تو جیسے ہی ویمپ سرور پہ آؤ گے، اس کو کلک کرو گے، یہ پوچھے گا اوپن کرنا ہے، یس۔ تو آپ یہاں پہ دیکھیں گے کہ یہ اچھا، میں نے کچھ دوسرا سرور بھی آن کیا، اسے میں سٹاپ کر لوں تو یہ یہاں پہ آئے گا۔ بعض کے یہاں پہ آ رہا ہوتا ہے سسٹم ٹرے میں، ادھر آ رہا ہوگا، تو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اس کو جب آپ اس کو سٹارٹ کریں گے تو پہلے ریڈ، پھر یلو اور پھر وائٹ۔ جب یہ وائٹ ہوگا تو اس کا مطلب ہے اوکے ہے۔ اگر اس میں سے وائٹ کے علاوہ ریڈ یا یلو کوئی بھی کلر ہے تو اس کا مطلب اس کی تمام سروسز ابھی آن نہیں ہوئے۔ ری اسٹارٹ آل سروسز کر کے آپ دوبارہ سے اس کو ری اسٹارٹ بھی کر سکتے ہو، یا یہاں سے بھی آپ اس کو کر سکتے ہو۔ خیر ویمپ سرور کا تھوڑا سا انٹروڈکشن دیکھ لیں کہ ویمپ سرور میں ہمارے پاس، میں نے جیسے پہلے کہا، اپاچی چاہیے جو کہ ہمیں سرو کرتا ہے ہماری ریکویسٹ کو، ایچ ٹی ایم ایل کی، پی ایچ پی چاہیے جو کہ ہمارے ایک کنٹرولر کے طور پر، اور مائی سیکول ہماری ڈیٹا بیس ہے۔ یہ پی ایچ پی ہے، یہ ہماری ڈیٹا بیس ہے، اور یہ ہمارا ایچ ٹی ایم ایل ہے، انٹرفیس بنانا ہے۔ آج ہم انسرٹ بنا رہے کی کیوری سے ہم کچھ ویلیوز کو انسرٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس کے لیے ہم ٹولز جو یوز کریں گے، ویژول اسٹوڈیو کوڈ ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ لوگ انسٹال کر لیجئے گا، نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا۔ ویمپ کا 2.0 میں یہی ریکمینڈ کروں گا، اس میں ایرر کم آتے ہیں تو آپ اس کو یوز کر لیں۔ یہ اس سے اوپر والوں میں اوریجنل میں بہت زیادہ ایررز آتے ہیں، تو نیٹ سے بے شک یہ بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، نہیں تو یہ تو میرے پاس اویلیبل آپ کو ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں، سب سے پہلے ہم ڈیٹا بیس بنانا سیکھتے ہیں، پھر ہم اس کا انٹرفیس بنائیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم اس میں ویلیوز کنٹرولر کی مدد سے سٹور کروائیں گے، اور ہمارا یہ پہلا والا سیکشن کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو اگین یہ اس میں ہمیں ہمارا ہے تو ہمارا جو اس میں ہمارا ڈیٹا بیس جو ہے وہ تو مائی سیکول ہی استعمال ہو رہی ہے، بٹ کیپ ان مائنڈ کہ ایک ڈیٹا بیس ہوتی ہے اور ایک ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ہوتی ہے۔ تو ہم جو ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم استعمال کر رہے ہیں وہ پی ایچ پی مائی ایڈمن ہے۔ کون سا ہے؟ پی ایچ پی مائی ایڈمن۔ یہ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ہے، یہ ڈیٹا بیس کو مینج کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو ہم کیا کریں گے، اپنی ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کو اوپن کرنے کے دو طریقے ہیں۔ یہاں پہ پی ایچ پی مائی ایڈمن پہ کلک کریں، سمپل از دیٹ، اور یہ میں لیفٹ کلک کر رہا ہوں، یہاں پہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کو مجھے پاس ورڈ دینا ہوگا، یہ آپ کو نہیں، آپ کھولیں گے تو ڈائریکٹلی آ جائے گا۔ میں ایک وقتی طور پہ اس ویڈیو کو پاز کر رہا ہوں، اس کی کچھ سیٹنگ کرنے والی ہے میرے سسٹم پہ، تو میں کر کے تو پھر آپ کو بتاتا ہوں۔ ہاں جی، تو جیسے ہی آپ اس کو کلک کریں گے تو یہ آپ کا پی ایچ پی مائی ایڈمن کا پیج کھل جائے گا۔ اس کو کھولنے کے ایک تو طریقہ میں نے یہاں پہ بتا دیا آپ کو کہ کلک کریں گے تو یہاں پہ پی ایچ پی مائی ایڈمن پہ دوسرے نمبر پہ۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کا ڈائریکٹلی ایڈریس لکھ دو، ایڈریس بار میں یہاں پہ آپ لکھو
लोकल होस्ट /phpMyAdmin, तो ये आप खुल जाएगा। और तीसरा तरीका ये भी है कि आप लोकल होस्ट लिखोगे, जैसे आप लोकल होस्ट लिखोगे तो यहाँ पे आपका phpMyAdmin आ जाएगा। अच्छा खैर, इसमें अब हम करने क्या लगे हैं, मैं बेसिकली अगेन अपने उसी स्क्रीन पे आता हूँ, इंटरफेस में, मतलब कि डेटाबेस बनाने लगा हूँ मैं। यहाँ पे टेस्ट फेज के नाम से, वीयू टेस्ट फेज के नाम से एक डेटाबेस बनाता हूँ। तो डेटाबेस बनाने के लिए वीयू टेस्ट फेज, ये मैंने एक डेटाबेस बना दी। अब जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करूँगा मेरी डेटाबेस क्रिएट हो गई। डेटाबेस मुश्तमिल होती है अगर टेबल्स पे, तो मैं टेबल बनाता हूँ। कोई भी टेबल का नाम TB, मैंने TBL कर दिया, टेबल का नाम दे दिया, और इसके अंदर 2 फील्डें फिलहाल रख रहा हूँ। एक फील्ड का नाम मैंने फर्स्ट और दूसरी फील्ड का नाम सेकंड रख दिया। ये इनकी डाटा टाइप है, ये फील्ड का नाम है, ये इनकी डाटा टाइप है। इसमें var जो है, टेक्स्ट, डेट और इस तरह ये सारी डेटाबेसेस हैं कि जो हैं टाइप्स हैं। तो यानी जिस तरह का उसमें डाटा स्टोर किया जा सकता है ये वो टाइप है। तो आप मतलब कि जो अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंगली, जैसे अगर मैं फ़ोन नंबर लूँगा तो वो इंट में आएगा, अगर मैं डेट करूँगा तो उसके लिए ये हो गई, टेक्स्ट है तो उसमें सभी कुछ हो जाता है, var में भी सभी कुछ आ जाता है। तो ईयर्स में अगर साल आपने सेलेक्ट करना है तो इसको आप स्टडी कर सकते हो नेट से। हम लोग आगे जब अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंगली डाटा टाइप को सिलेक्ट कर लेंगे। फ़िलहाल मैं var ही रहने दे रहा हूँ और इसकी var की मैक्सिमम लेंथ 255 है। आप अपने अकॉर्डिंगली, मसलन फर्स्ट है तो मैं कहता हूँ फर्स्ट नेम ज़्यादा से ज़्यादा 15 करेक्टर का हो सकता है, और सेकंड नेम भी इसी तरह 15 का हो सकता है, 10 का हो सकता है, तो हम रख सकते हैं। आप मैक्सिमम जो ले सकते हो वो 255 है, 256 से कम नहीं ले सकते var में, और सभी की डिफरेंट है, ये आपको मिल जाएगा। उसके बाद ये कोई एक्स्ट्रा में ऑटो इंक्रीमेंट लगानी है, प्राइमरी की या इंडेक्स है, तो ये सारी चीज़ें, ये अगर मैं इसी को ही एक्सप्लेन करने बैठूँ तो एक पूरा मतलब कि काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो हमने इसमें सिर्फ अपने अकॉर्डिंगली जो हमें टेस्ट फेज़ में चीज़ें चाहिए उसके अकॉर्डिंगली मैं चीज़ें बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आपको पता होना चाहिए फील्ड का नाम देना है, टाइप्स का पता होना चाहिए, उसकी लेंथ का पता होना चाहिए। बाज़ की लेंथ नहीं होती, मसलन डेट है तो वो फिक्स है, उसकी कोई लेंथ देने की ज़रूरत नहीं। टेक्स्ट है तो उसकी कोई लेंथ देने की ज़रूरत नहीं। तो फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसको सेव कर देता हूँ। ये मेरा सेव हो गई। ब्राउज़ कर किस लिए किया जाता है, देखो ये सिलेक्ट की क्यूरी है कि इसको देखने के लिए, इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है। स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर है, इन चीज़ों को भी आप थोड़ा सा एक गो थ्रू कर लीजिएगा। नेट पे ट्यूटोरियल का मैं लिंक भी आपको फॉरवर्ड कर दूंगा जिसमें इसके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उसको देख लीजिएगा। बस सरसरी सा देख लेना काफ़ी है। इसका टेस्ट फेज़ में कभी नहीं इतना पूछा जाता, कोडिंग का पूछा जाता है जो कि आने वाला है। ये तो सिंपल बस क्लिक है और कुछ भी नहीं है। तो इसमें ज़ाहिर बात है इतने एडवांस लेवल की चीज़ें हैं कि आप लोगों ने इसका पूरा कोर्स पढ़ा हुआ है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस पे भी पढ़ा हुआ है, फिर उसके बाद आपने एडवांस डेटाबेस भी पढ़ी हुई है। तो ये तो पूरा मसलन के कोर्स हैं इस पे। तो होपफुली आपने वहाँ पे कुछ अच्छा ही किया होगा, क्यूरीज श्यूरीज का पता होगा। तो हमारा ये वाला काम हो गया इसमें। फ़िलहाल मैं उतना करवा रहा हूँ जितना हमें चाहिए। ये वाला काम हो गया, डेटाबेस बन गया। अब हमने इंटरफेस बनाना है। इंटरफेस बनाना है, हम HTML को यूज़ करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे मैं ये है वो विजुअल स्टूडियो कोड। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो मेरा पहले प्रोजेक्ट बना हुआ है सब कुछ मैं बंद कर रहा हूँ, क्लोज फोल्डर कर दिया। ये आपको इस तरह जब आप ओपन करेंगे तो इस तरह नज़र आएगा। आप क्या करें यहाँ पे हमने जितना काम भी करना है ना, उससे पहले बहुत ही अहम बात, हमने जितना भी काम करना है वो वैम्प सर्वर, ये जो है ना वैम्प सर्वर, इसकी www डायरेक्टरी में जाके रखना है। वैम्प सर्वर की www डायरेक्टरी में रखना है। तो फिर कह रहा हूँ वैम्प सर्वर की www डायरेक्टरी में स्टोर होना है, वरना वो रन नहीं होगा। तो वैम्प
की www डायरेक्टरी में जाके मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ, that name to be vu, अच्छा vu प्रोजेक्ट के नाम से है vu टेस्ट फेज। ये मैंने एक प्रोजेक्ट का एक फोल्डर क्रिएट किया है। अच्छा जी, तो अब इस फोल्डर के अंदर मैंने जितना कुछ भी है मैंने इस व्यू टेस्ट फेज, आपके यहाँ पे इतनी चीज़ें नहीं नज़र आ रही होंगी क्योंकि ये मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पहले बनाए हुए हैं जो कि नज़र आ रहे हैं यहाँ पे आपको। तो यहाँ पे सिर्फ एक इंडेक्स की फ़ाइल नज़र आ रही होगी जब आप इसको खोलोगे, तो घबराना नहीं है, ये कुछ भी नहीं नज़र आएगा, ये आपसे मुतल्लिका नहीं है। तो आपने ओपन फोल्डर कर लेना है, यानी आपका जो भी वैम्प जिधर भी इंस्टॉल है आपके सी में इंस्टॉल होगा, मैंने डी में किया हुआ है। वैम्प में जाके www में जाएंगे और आपको इतना कुछ नहीं नज़र आ रहा होगा, आपको सिंपल आगे vu टेस्ट फेज नज़र आ रहा होगा, इसको सिलेक्ट करवा लेना। जैसे आप इसको सिलेक्ट करवा लोगे तो उसके बाद ये इस तरह की इन्वायरमेंट है कि इसके अंदर यहाँ पे हम एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। इस फोल्डर के अंदर हम एक नई फाइल करते हैं, हम कहते हैं इसको, हम कहते हैं form.html। html का हमने एक फॉर्म बनाना है, इनपुट के नाम से दे देते हैं क्योंकि ये इनपुट है .html। ये मैं फाइलें भी आपको इंशाल्लाह सेंड कर दूंगा, फाइलें भी ये मैं आपको सेंड कर दूंगा। मैं भूल जाऊं वीडियो के बाद तो मुझे रिमाइंड करवा दीजिएगा। ये आप आ गई फाइल, इसमें HTML का रेफरेंस जो है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं, W3 schools, यहाँ पे ये HTML है। डिटेल में आपने देखना है तो यहाँ पे ये लर्न HTML, इसको आप डिटेल से देख सकते हो। लेकिन खैर आई डोंट हैव अ टाइम, इतना नहीं है कि मैं इसकी डिटेल में चला गया, तो ये तो पूरी एक लैंग्वेज है और शुरू से लेकर एंड तक है। मैं स्पेसिफिकली प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूँ। तो हम सबसे पहले हम HTML का टैग ओपन करते हैं, थोड़ा सा मैं बताता चलता हूँ। HTML का टैग ओपन करते हैं, साथ ही वो क्लोज, फिर उसके बाद हेड होता है, हेड का टैग होता है, और फिर उसके बाद बॉडी का टैग। ये HTML को स्टार्ट करने के बेसिक्स टैग्स हैं। HTML पूरा पेज, ये HTML का पेज है, इसका मतलब है ये पूरा पेज। हेड का मतलब ये हेड है और बॉडी का मतलब ये बॉडी है। हेड के अंदर टाइटल का टैग यूज़ होता है, तो कोई भी टाइटल देने, टाइटल मैंने कहा इंसर्ट क्यूरी, और बॉडी के अंदर हम कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं H1 हेडिंग के लिए बहुत सारे टैग्स हैं। H1 हेडिंग के लिए तो मैं H1 2 3 ये सारे हेडिंग के टैग हैं। तो बॉडी ऑफ इंसर्ट पेज की बॉडी मैंने इसको सेव कर दिया। अब इसको रन कैसे करना है, इसको डायरेक्टली रन नहीं करना, इसको आपने यहीं पे जाना है, लोकल होस्ट लिखना है। लोकल होस्ट लिखेंगे आपको आपके प्रोजेक्ट, फिर कह रहा हूँ ये सारे नज़र नहीं आएंगे, आपको सिर्फ व्यू टेस्ट फेज वाला नज़र आएगा जो आपका है। इसको आप क्लिक करोगे, इस पर क्लिक करोगे तो ये आपका वो व्यू इंसर्ट पेज और इंसर्ट क्यूरी कहाँ कहाँ लिखा है अगेन बता देता हूँ। ये इंसर्ट क्यूरी है, ये टाइटल में आ जाएगा और व्यू टेस्ट फेज इधर आ जाएगा। अब हमें फॉर्म बनाना है। मैं रेफरेंस के तौर पे अगेन HTML को देखता हूँ, फॉर्म वाले सेक्शन में आ जाते हैं। ये फॉर्म बनाना है, फर्स्ट और लास्ट यही दो चीज़ें हमने बनानी है। ट्राई इट योरसेल्फ, यहाँ पे ये देखें ये फॉर्म है और ये सारा कुछ है, इसी को हम हाँ जी। फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले टैग क्या है फॉर्म का, उसके अंदर हम जो भी हमने एलिमेंट्स देने होते हैं, मतलब कि हमने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ये लेबल है वो जो उसको शो करेगा। ये वो जो
बॉक्स बनता है जिसके अंदर हम इनपुट देते हैं, ये वो चीज़ आ रही थी। और लास्ट नेम ये लेबल है, लेबल का मतलब है कि वो लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। और इसके अंदर हमने फिर इनपुट टाइप टेक्स्ट कर देंगे, तो टाइप टेक्स्ट में जो कुछ भी हम लिखेंगे वो हमें शो होगा। पहले मैं इसकी आउटपुट दिखा दूं, साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन, वैसे इधर ये साथ ही आउटपुट दी हुई है, लेकिन मैं इसको अपने अकॉर्डिंगली, ये देखें जी, ये जो है फर्स्ट नेम, ये ऊपर जो आ रहा है लेबल आ रहा है, जो जॉन लिखा हुआ आ रहा है, ये जो है इनपुट बॉक्स है, जो भी हम इसमें कोई पुट कर सकते हैं, इसमें हम पुट नहीं कर सकते, तो इनपुट टाइप टेक्स्ट इसकी मदद से ये आ रहा है। इसमें हम वैल्यू रहने देते हैं, इसको जितना सिंपल कर सकें हम उतना ही करते हैं। अभी फ़िलहाल आप इन चीज़ों पे ना जाएं, ना हमें आईडी की ज़रूरत है, ना हमें वैल्यू की ज़रूरत है, बिल्कुल सिंपल सा। तो फर्स्ट नेम आ गया, उसके अंदर जो भी हमने पुट किया वो जो भी हम लिखेंगे इधर आ जाएगा, लास्ट नेम में जो भी लिखेंगे हम वो। और उसके बाद हमने इनपुट टाइप सबमिट, सबमिट का बटन है, जैसे ही सबमिट का बटन क्लिक करेंगे जो भी हमने एक्शन में लिखा होगा ये उस पेज पे चले जाएगा। ये हमारा HTML का पेज कंप्लीट हो गया। जी, अभी तक हमने इंटरफेस बना लिया है। इंटरफेस यानी कि ये वाली चीज़, इसको हम इंटरफेस बोलेंगे। ये हमने HTML में इस्तेमाल करके इंटरफेस बनाया, ठीक है, ये हमारी HTML इस्तेमाल हुई है। तो ये सारी HTML में .html की फ़ाइल हमने बना के इंटरफेस बना ली। फिर हमने डाटाबेस बना ली है, ठीक है, व्यू टेस्ट फेज़ के नाम से, जो कि हमने ये बनाई है व्यू टेस्ट फेज़ के नाम से। टेबल इसके अंदर TBL बनाया है, और फर्स्ट सेकंड ये हमने दो इसके अंदर फील्ड्स बनाई हैं, वार 4 15-15 उनकी लेंथ रखी है। ये दो काम किए, यानी कि ये इधर से ये भी हो गया, इधर से ये भी हो गया। अब हम PHP की तरफ आ रहे हैं। देखिए PHP का मिसाल मैंने दी है वेटर की। वेटर सबसे पहले क्या होता है, आप टेबल पे भी जाके बैठते हो और आप वेटर को बुलाते हो, यानी कि HTML भी PHP को लिंक हो क्लिक करेगी, लिंक करेंगे हम HTML में बताएं, यानी आपने जाके वेटर को आवाज़ देनी कि भाई बात सुनो, फिर वो वेटर आपके पास आएगा और ऑर्डर लेगा। यही एक कॉन्सेप्ट इधर भी है कि हमने HTML के अंदर हमने PHP का लिंक देना है कि इस HTML के साथ, यानी इसकी जो रिक्वेस्ट है कौन सी कंट्रोलर PHP की फ़ाइल लेके जाएगी। तो हम यहाँ पे फ़िलहाल एक PHP की फ़ाइल बनाते हैं, इसको भी हम input.php बना देते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है, इनपुट कंट्रोलर कह देते हैं। कहीं आप लोग ये ना समझो कि इसका नाम इनपुट होना ज़रूरी है, वो HTML है, ये PHP है, तो इसका नाम सेम होना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। अब सबसे पहला काम मैंने कहा कि हमें यहाँ पे क्या करना है कि HTML ने कॉल करने हैं किसको, PHP को। तो जो .php की फ़ाइल है, PHP के अंदर हम HTML इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन HTML के अंदर हम PHP इस्तेमाल नहीं कर सकते। बहुत ज़रूरी नुक्ता है, HTML के अंदर हम PHP इस्तेमाल नहीं कर सकते HTML की फ़ाइल के अंदर, लेकिन PHP की फ़ाइल के अंदर हम HTML इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल एक HTML का टैग है, या बल्कि कुछ भी नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ माई PHP फाइल, सिंपल मैंने यहाँ पे एक ये चीज़ लिख दी। अब इसको मैंने लिंक करवाना है किसके साथ, PHP में। ये मेरी HTML है, HTML के अंदर मुझे PHP को लिंक करवाना है, तो यहाँ पे मैंने इनपुट कंट्रोलर डॉट PHP उसका नाम दे देना है। जैसे ही ये बट सबमिट होगा तो ये किसके पास चले जाएगा, इस फाइल के साथ चले जाएगा। तो ये मेरा पहला काम हो जाएगा कि मैं यानी यहाँ से कॉल दे रहा हूँ, कौन सी PHP की कंट्रोलर को कॉल दे रहा हूँ, तो वो ये हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर देना है, कॉल देनी है सबसे पहले। इसको चेक कर लेते हैं, अब साथ साथ इसके इंटरफेस को भी चेक कर लेते हैं। ये मैंने
डी लास्ट नेम में एल लिखा, सबमिट किया, तो ये देखें ये आपका क्या आ गया, माई PHP फाइल, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा था। तो इसका मतलब है कि ये वाली फाइल को कॉल सही चली गई है। और ऊपर आप देखें तो ये आपकी वो वाली फाइल, ऊपर उसका लिंक भी आ रहा है .php। और अगली मज़े की बात, एफ नेम में dd आ रहा है और एल नेम में ll आ रहा है। मतलब क्या है कि हमने जो यहाँ पे पैरामीटर लिखे थे ए बी सी, मैं दोबारा आपको लिख के दिखाता हूँ, ए बी सी एक्स वाई सी, तो ये ऊपर कंट्रोलर के वे जा भी रहे हैं, बी सी और एक्स वाई जी किसके पास जा रहे हैं, इनपुट कंट्रोलर के पास जा रहे हैं। ठीक है, ये HTML फाइल से जो भी हम लिखेंगे यहाँ पे जा रहा है। जब एक चीज़ जा रही है यानी लिंक हो गई, जब एक चीज़ जा रही है तो यानी इसने भेज दी, HTML ने भेज दी। अब आप यानी इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि इधर से इसने इसको भेज दिया। जब ये भेजेगा तो इसका अगला काम क्या होगा, ये उसको वसूल करेगा, गेट करेगा। क्या करेगा, गेट करेगा, सीधी सी बात है। मैं आपको कोई चीज़ देता हूँ तो आप उसको रखोगे, गेट करोगे तो आपके पास वो चीज़ आएगी ना। तो दोनों काम होते हैं। तो हमने इधर से लिंक किया। अब ये अगेन PHP इस्तेमाल करने के लिए ये टैग है, हमारी जितनी भी PHP है इन टैग्स के बिटवीन इस्तेमाल होगी। ठीक है, PHP का टैग ओपन और क्लोज, ये क्लोज है और ये ओपन है, होगा तो उसके अंदर PHP इस्तेमाल होगी। मैंने कहा कि मुझे गेट करना है, $_ गेट का फंक्शन है, ये PHP का फंक्शन है। नाम से ज़ाहिर है क्या करने के लिए, गेट करने के लिए। क्या, जो पीछे HTML के फॉर्म में वैल्यू उसको सेंड की है, कहाँ पे की है, ये वाली वैल्यू की है। एफ नेम फॉर्म के एलिमेंट्स के नाम देंगे। ठीक है, और यहाँ पे PHP में कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करना उससे पहले $, कोई इंट स्ट्रिंग लिखने की ज़रूरत नहीं, $, लिखें और आगे वेरिएबल का नाम लिख दें। मसलन कि मैंने कहा एफ नेम फर्स्ट के नाम से करो, कुछ भी दे सकता हूँ। तो अब क्या है, ये जो एफ नेम की वैल्यू के अंदर जो भी वैल्यू, बाज़ औक़ात ABC आएगी, बाज़ औक़ात XYZ आएगी, वो किसके अंदर स्टोर हो जाएगी, फर्स्ट के अंदर। सेम इसी तरह मैं एल नेम जो कि इससे अगला पैरामीटर है, या यहाँ से इसे कॉपी पेस्ट कर लें या यहाँ से, बेहतर है यहाँ से कर लें। ये जो आपने नाम दिया है ना, एक्चुअली ये वो नाम है, वही ऊपर शो हो रहा है और वही आपने यहाँ पे जो भी नाम दिया होगा एग्जैक्ट स्पेलिंग के साथ आप इसको कॉपी पेस्ट कर लें। रेफरेंस के तौर पे मैं कॉपी पेस्ट करूँ तो ये आ गया एल नेम, इसको आप लास्ट कर लें, जो मर्जी इसका नाम दे दें। तो ये लोकल वेरिएबल है। हम यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो भी वैल्यू पीछे से HTML के फॉर्म से, यहाँ से फॉर्म में जो भी यूज़र लिखेगा एफ नेम में और एल नेम में जो भी वैल्यू लिखेगा, वो यहाँ से ये PHP का फंक्शन उसे गेट करेगा, हासिल करेगा और इस लोकल वेरिएबल में उसको स्टोर कर देगा। अब हम चेक करने के लिए कि हमने वैल्यूज़ जो गेट की हैं क्या वो PHP के अंदर आ गई हैं, तो उसके लिए प्रिंट की फंक्शन है। प्रिंट कर दो किसको, वेरिएबल को। जब आपने प्रिंट करवाना होता है तो डबल कोटेशन में नहीं लिखते। और जब डबल कोटेशन में लिखेंगे तो वही वैल्यू वैसे प्रिंट हो जाएगी। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं, इसी को रिफ्रेश करते हैं तो ABCXYZ आ रहा है। अभी हम यहाँ पे वैल्यू चेंज करते हैं, सबमिट किया तो असगर अली हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया कि हमने जो भी वैल्यूज़ पीछे लिखी फॉर्म में, देखें जो भी वैल्यू लिखी फॉर्म में, वैल्यू तो तब्दील होती रहेंगी। मसलन कोई आएगा वो SS और DD लिखेगा, तो वही SS और DD हमारी PHP उसको गेट कर रही है। तो हम उनके नेम से, यानी कि फॉर्म के जो एलिमेंट्स के नाम होते हैं वो के यहाँ पे हम मेंशन किए हैं हमने,
ان سے اس کو گیٹ کریں گے. تو یہ ہمارا پروسیس ہو گیا کہ سمپل از ڈیٹ کہ یہاں سے ویلیو اس پی ایچ پی کے پاس آ گئی. یہ والا کام ہوگا. ٹھیک ہے جی. اب یہ والا کام ہو گیا. اب یہ والا کام کرنا ہے ہم نے اگین کہ یہاں پہ ہم نے ڈیٹا بیس کے اندر اس کو سٹور کروانا. تو ڈیٹا بیس میں جب ہم نے سٹور کروانا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے تو جسٹ چیک کرنے کے لیے تھا. ڈیٹا بیس میں یہ بہت اہم چیز ہے. اب یعنی یہ ویسے تو سارا ہی لیکن اصل چیز یہ بڑا پوچھتے بھی ہیں اس کو نا کہ ہم نے ڈیٹا بیس میں جب ہم نے کوئی چیز سٹور کروانی ہے تو ہم نے جیسے HTML سے کوئی چیز بھجوانی تھی PHP کو تو ہم نے HTML میں اس کو لنک کیا تھا. تو اسی طرح ہم نے اب جب PHP سے کوئی ڈیٹا بیس میں کروانی ہے تو PHP کو لنک کریں گے. تو سب سے پہلے ہم لنک کریں گے پھر ہم مطلب کہ اس کو ڈیٹا بیس کو سلیکٹ کروائیں گے پھر اس کے اندر کچھ انسرٹ کروائیں گے. تو ہم نے اب بیسیکلی کنیکٹ کرنا ہے اس ہمارا جو بھی ہمارا سرور ہے یہ سرور ہے لوکل ہوسٹ سرور ہے اس کے ساتھ ہم نے اس کو کنیکٹ کروانے لگے. اس کے اندر یہ 4 ڈیٹا بیس ہیں. تو سب سے پہلا فنکشن ہوگا MySQL _ کنیکٹ. یہ ایک فنکشن ہے جو کہ کنیکٹ کرتا ہے ڈیٹا بیس کے ساتھ. اب اس کے پیرامیٹر ہیں. سب سے پہلا ہے لوکل ہوسٹ کہ جو سرور کا یہ سرور ہمارا لوکلی ہوسٹ ہے تو ہم نے اس کا لوکل ہوسٹ یہ لکھا بھی ہوا ہے لوکل ہوسٹ یہ سرور کا نام. تو ہم یہ لوکل ہوسٹ سرور کے ساتھ اس کو کیونکہ کنیکٹ کریں تو یہاں پہ ہم لوکل ہوسٹ لکھیں گے. اچھا جو بھی سرور ہوتا ہے جو بھی ونڈو ہوتی ہے اس کا ایک یوزر ہوتا ہے. اور جیسے اگر ونڈو میں کوئی بھی یوزر ہم نہ بنائے تو ڈیفالٹ یوزر ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے. تو ہماری ڈیٹا بیس میں روٹ ڈیفالٹ یوزر ہوتا ہے جس کے پاس تمام رائٹس ہوتے ہیں اور پاسورڈ اس کا کوئی نہیں ہوتا اگر ہم نے کوئی سیٹ نہ کیا ہو. اگر کیا ہو جیسے میں نے جب پچھلا یہ لیکچر سٹارٹ کیا تھا تو میری ڈیٹا بیس پہ پاسورڈ لگا ہوا تھا تو وہ ایرر شو کر رہا. تو آپ جب انسٹال کریں گے نا فریش انسٹالیشن تو کوئی ڈیٹا بیس میں آپ کا پاسورڈ نہیں ہوگا. تو یہاں پہ آپ نے خالی چھوڑنا ہے. ڈیٹا بیس کا پاسورڈ ڈیٹا بیس کا یوزر اور کون سے سرور کے ساتھ آپ نے کنیکٹ ہونا ہے. تو یہ لوکل سرور ہے اس کے ساتھ آپ کنیکٹ ہو گئے. تو یہ جو بھی آپ نے کنیکشن ہے یہ ایک ویریبل کے اندر CON کے نام سے ہم نے ایک ویریبل بنایا. کوئی بھی ویریبل ہے کنیکشن کا ایبریویشن ہے $، اس کے اندر ہم نے سٹور کروا دیا. پھر اس سے اگلا کام ہے MySQL _select _db ڈیٹا بیس. تو اس نام سے ظاہر ہے کہ اب آپ نے ڈیٹا بیس کو سلیکٹ کروانا ہے. کون سی ڈیٹا بیس کو سلیکٹ کروانا ہے تو یہاں پہ آپ نے ڈیٹا بیس کا نام دینا ہے اسٹرنگ میں دینا ہے ڈبل کوٹیشن میں. تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو ڈیٹا بیس ہم نے بنائی ہے ہم نے اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے. اس کے سپیل ایگزیکٹ ہونے چاہیے جو بھی آپ نے دیے ہیں. میں جہاں کاپی پیسٹ کر رہا ہوں اس کا مطلب ہے وہ سپیل ایگزیکٹ ہونی چاہیے. اور اس کے بعد آپ نے یہ جو کنیکشن کا ویریبل ہے یہ اس کو پاس کر دینا یعنی اس سرور سے اس کو سلیکٹ کرو. صاف سی بات ہے. سب سے پہلے ہم نے کنیکٹ ہوئے. ہم کہاں پہ کنیکٹ ہوئے اس سرور کے ساتھ کنیکٹ ہوئے. اس سرور پہ تو 4 ڈیٹا بیسیں پڑی ہیں. تو ہم نے کون سی ڈیٹا بیس کو سلیکٹ کروانا ہے تو ہم نے بتایا VU ٹیسٹ فیز کو اس سرور کے ساتھ جو کنیکٹ ہوئے اس کے اوپر جو VU ٹیسٹ فیز ہے اس کو سلیکٹ کروا دو. اب اس کے بعد ہم نے سمپل کیوری لکھنی ہے. تو اس کے لیے PHP کا فنکشن ہے MySQL _query نام سے ظاہر ہے. اس میں ہم کیوری لکھیں گے. اب آپ کی بات شروع ہو جاتی ہے جو آپ نے جو کچھ پڑھ رکھا ہے پتہ نہیں کتنا پڑھا ہے اور کتنا وہ ڈیٹا بیس آپ کو اچھے سے آتی ہے یہ سارا اس پہ آ جاتا ہے. نہیں بھی آتی تو یہ میرا لیکچر سمجھ لیں آپ کو پتہ چل جائے گا. اس میں اگین ریفرنس کے طور پہ آپ کو بتا دوں
रेफरेंस के तौर पे। ये सारी चीज़ें मैं ना लिंक में भी नीचे दे दूंगा आपको। W3 स्कूल, इसके अंदर ना सीक्वल के भी ट्यूटोरियल्स हैं, सीक्वल जावास्क्रिप्ट पाइथन, ये सीक्वल के हैं। और ये सिलेक्ट का, और हम जो क्यूरी लिखने लगे हैं इंसर्ट वाली लिखने लगे हैं। इंसर्ट इनटू कीवर्ड है जो येलो है, और आगे टेबल का नाम, और आगे फिर कॉलम का नाम, और फिर उसकी वैल्यूज। तो अगेन ये मैंने रेफरेंस के तौर पे बताया। इंसर्ट इनटू आगे कौन से, देखें हमने डाटाबेस सेलेक्ट कर ली, हमने अब क्यूरी चलानी है। हम कह रहे हैं इंसर्ट करो, किसके अंदर इंसर्ट करो, यहाँ पे हमने बताना है हमारी इस डाटाबेस के अंदर अभी तो एक है, बहुत सारे टेबल हो सकते हैं। तो TBL का जो हमारा टेबल है इसके अंदर इंसर्ट करो। अच्छा जी, आगे कॉलम्स के नाम आ जाएंगे, फिर वैल्यूज़ कीवर्ड है, फिर इसको देने वाली हम वैल्यूज़। कॉलम कौन कौन से हैं इसके अंदर, हम अगर कॉलम देखें, फर्स्ट के नाम से कॉलम है, कोमा, लास्ट के नाम से कॉलम है, सेकंड के नाम से, सॉरी सेकंड के नाम से कॉलम है। ये दो कॉलम हमने यहाँ पे जो थे एग्जैक्ट स्पेल में, चाहे आपने स्पेलिंग गलत लिखे हैं डाटाबेस में, चाहे ठीक लिखे हैं, ये मैंने कॉपी पेस्ट किया। मैं फिर कह रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने यहाँ भी गलती करनी है, तो मैं पहले बता रहा हूँ कि एग्जैक्ट स्पेल को आपने वहाँ पे लिखना है। कॉपी पेस्ट का मकसद ये है कि आपको पता चले। और फिर यहाँ पे हमने वैल्यूज़ देनी है सिंगल कोटेशन में। मैंने कहा मैं चाह रहा हूँ कि फर्स्ट के अंदर और सेकंड के अंदर B स्टोर हो जाए। चलें जी, अभी मैं इस क्यूरी को रन करता हूँ, इसी को रिफ्रेश करते हैं। अच्छा सॉरी, मेरा डेटाबेस को ना पासवर्ड लगा हुआ, तो इस वजह से आप लोगों ने पासवर्ड नहीं देना, मैं बल्कि पासवर्ड ख़त्म ही करता हूँ, फिर कंफ्यूजन ही रहेगी आप लोगों को। वीडियो को पॉज करके जी मैंने पासवर्ड ख़त्म किया, यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, बस इसको आपने रिफ़्रेश किया। जब आप इसको रिफ़्रेश करेंगे तो देन क्या होगा, आप इसमें आए, इसको ब्राउज़ करें तो ये A और B स्टोर हो गया। ठीक है, अगेन मैं इसी को दोबारा जाता हूँ, यहाँ पे हमने लिखा असगर अली और इसको सेव किया, तो यहाँ पे तो ABC स्टोर हो रहा है। अब क्वेश्चन ये है, आप ज़रा इसको वीडियो को यहाँ से आगे ना देखिएगा, मैं इसका सलूशन भी आगे अभी बता देता हूँ। तो आपके अब असाइनमेंट ये है कि आपने ये जो असगर अली लिखा है इसको आपने अपने यहाँ पे स्टोर करवाना है। कहाँ पे, डेटाबेस में। यहाँ से तो असगर अली जा रहा है, हमने प्रिंट करके देखा, वहाँ पे उसको PHP में गेट भी कर लिया, लेकिन डेटाबेस में तो क्या स्टोर हो रहा है, A और B। ठीक है, आपने यहाँ तक वीडियो को अभी स्टॉप कर देना है, आगे नहीं देखनी अभी, और इसको हल करने की खुद से कोशिश करनी है। जब आप इसको हल कर लें ना हो तो फिर ये अगली वीडियो देख लीजिएगा, मैं अभी आपको इसका सलूशन बता देता हूँ। ठीक है, ये इसी हिस्से में, लेकिन आपने ये आपका सेल्फ टास्क है, उससे आपको खुद अंदाज़ा होगा आपने कितना लर्न किया। ज़रूर 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 फिर मैं ज़ोर लगाइएगा इस पर। अच्छा चलें, इसका सलूशन भी बता देते हैं, लेकिन होपफुली आपने इसकी प्रैक्टिस की होगी। देखें, जो पहला असगर आ रहा है वो इसमें आ रहा है, अली इसमें आ रहा है, यानी पहला और लास्ट में के वेरिएबल्स में आ रहा है। तो सिंपल इज़ डैट, यहाँ पे हमने एक ही जगह फर्स्ट का एलिमेंट रखना है, यहाँ पे हम फर्स्ट का वेरिएबल रख देंगे, और B की जगह हमने यहाँ पे हम ये दूसरे वाला लास्ट वाला एलिमेंट लिख देंगे। देखें, ये समझाने की गर्ज से ज़रूरी नहीं है कि ये डेटाबेस में फील्ड का नाम फर्स्ट है तो वेरिएबल का नाम भी फर्स्ट रखें, हालांकि ये कैपिटल के साथ है और ये स्मॉल में है।
یہاں پہ ہم نے سیکنڈ لکھا لیکن یہاں پہ لاسٹ لکھا ہے، اس سے کوئی نہیں ہے. کیوں؟ اس کا لنک اس کے ساتھ ہے تو یہ ایگزیکٹ ہونی چاہیے. اس کا لنک اس کے ساتھ ہے تو یہ ایگزیکٹ ہونی چاہیے. فرسٹ کے ساتھ اور لاسٹ کے ساتھ. اور اس کا لنک میں پھر بتا رہا ہوں اس کے ساتھ. ٹھیک ہے، یعنی اس کو آپ نے یہاں پہ لنک کرنا ہے، اس کو آپ نے یہاں پہ لنک کرنا ہے، اور اس کو آپ نے ڈیٹا بیس میں لنک کرنا ہے. ٹھیک ہے، ڈیٹا بیس کی فیلڈ کے ساتھ. لیں جی، اب ہم دوبارہ ان کو دیکھتے ہیں. فیصل شہزاد، اور اس کو اب ڈیٹا بیس میں دیکھتے ہیں. لیں جی، یہ ہمارا رزلٹ ہو گیا. دیٹس اٹ. اب کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کوئی میسج بھی پرنٹ کروائیے گا، یہ بھی آپ کا ایک ٹاسک ہے. چلیں جی.